Children, good morning everyone. Today we are going to start question number 3. In question number 3 I have already done. In that question we have to compare the two given rational numbers. We have done it by the cross multiplication method. Yet there is another method of comparing the two rational numbers, that is by taking the LCM. Okay, जो भी method आपको ठीक लगता है, suitable लगता है, you can use that one. So let us see that. So first you have to check for the denominators, both should be in the standard form. So over here, is it in standard form? No, over here it is the denominator is the negative, so just shift this negative sign to the numerator. So it is minus 2 over 9 and minus 8 over 36. Now what we are going to do in LCM method, we have to take LCM of both the denominators. 9 and 36 का LCM कितना आएगा? 9, 36, 3 3s are 9, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 1s are 3, 3 4s are 12. Then it is by 2, 2 2s are 4 and 2 1s are 2. So what is the product of the factors? 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 3s are 36. Now this 36 means that each denominator in both the numbers should be equal to 36. Fine. So let us take first number minus 2 upon 9. अब 9 की जगह हमें क्या चाहिए? 36. So हम क्या करेंगे? We are going to multiply this 9 by 4. और अगर आपको ऐसे पता नहीं लगता है, then you have to just divide these two numbers. ठीक है? So it is 9 4s are 36. So that means you are going to multiply it by 4. Both numerator and denominator should be multiplied by 4. So it is minus 8 over 36, and second rational number is minus 8 over 36. ये तो आपके पास वैसे ही है, यहाँ पर आपके पास डिनोमिनेटर ऑलरेडी 36 के इक्वल है, सो इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 1. सो इट इज़ माइनस 8 over 36. अब आप दोनों को डिनोमिनेटर्स आपके इक्वल आ गए, यू हैव टू जस्ट कंपेयर द न्यूमिनेटर्स. ठीक है, बट यहाँ इस केस में हमारे दोनों नंबर्स आपके इक्वल आ गए हैं. ठीक है, सो एट द एंड यू आर गोइंग टू राइट दैट minus 2 over 9 that is equal to minus 8 over 36. You can take this number or you can take this number, both will be correct. ठीक है, so this was your answer. This is how you are going to solve by taking the LCM method. ठीक है, so now let us start. Arrange in the ascending order. Question number 4. So what is the ascending order? Ascending order means, फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्कूल में जब एंटर हुए तो स्कूल में आप सबसे पहले कौन सी क्लास में आए? LKG. LKG के बाद फर्स्ट, फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फोर्थ, फोर्थ के बाद फिफ्थ, सिक्स्थ एंड नाउ यू आर इन सेवेंथ. तो ये जो आप ऑर्डर फॉलो कर रहे हो, फ्रॉम LKG देन UKG देन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, मतलब यू आर गोइंग अपवर्ड्स, बढ़ रहे हैं आप, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है. सो दिस ऑर्डर इज नोन एज असेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, दिस ऑर्डर इज नोन एज असेंडिंग ऑर्डर. ठीक है ना, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और एंड में सबसे बड़ा, दैट इज़ नोन एज द असेंडिंग ऑर्डर. और इसका जो रिवर्स ऑर्डर होगा, फॉर एग्जाम्पल 6 से 7th में, सॉरी 6 से 5th में, 5th से 4th में, 4th से 3rd में, 3rd से 2nd में, देन फर्स्ट, UKG, LKG. सो दैट इज़ नोन एज द डिसेंडिंग ऑर्डर. क्लियर हो गया? ठीक है, सो असेंडिंग ऑर्डर मीन्स पहले आपको सबसे छोटा नंबर देखना है, फिर उससे बड़ा, फिर उसके बाद सबसे बड़ा. ठीक है, फर्स्ट चेक द नंबर्स, बोथ द नेगेटिव साइन दे विल कैंसिल. नाउ योर रेशनल नंबर्स हैज़ बिकम नाउ minus 3 upon 4, 5 upon 12, minus 7 over 16. So now हमें क्या करना है? इन डिनोमिनेटर्स को इक्वल बनाना है. सो LCM of 4, 12 and 16 will be equal to 2 2s are 4, 2 6s are 12, 2 8s are 16, then 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 2s are 4, then by 2 and then by 3. ठीक है, so what is the product of the factors? 3 2s are 6, 2s are 12, 2s are 24, 2s are 48. तो इस 48 का क्या मीनिंग हुआ? that the denominator in each rational number should be equal to 48. so let us take first number minus 3 over 4.
4 की जगह हमें क्या चाहिए डिनोमिनेटर 48। तो यहाँ पर 4 से हम जब भी ग्रेटर नंबर की तरफ आते हैं तो वी आर ऑलवेज गोइंग टू मल्टीप्लाई। ओके, सो 4 जस्ट डिवाइड बोथ द नंबर्स, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, मतलब 12 4 ज़ा 48. So we are going to multiply both numerator and denominator by 12. So it is minus 36, 12 3s are 36, 12 4s are 48. Now let us take second rational number 5 over 12. अब देखो 12 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो 12 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4. So it will be 48 upon 5 4s are 20. Now it is minus 7 over 16. 16 की जगह हमें क्या चाहिए 48. अब सभी को पता है 16 के टेबल में 48 कब आता है, इट इज़ 3s are. तो जिसको टेबल्स अच्छे से आते हैं उनको कोई मुश्किल नहीं आएगी, ठीक है. सो 16 3s are 48 and minus 7 3s are 21 with नेगेटिव साइन. क्लियर. अब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे छोटा नंबर, ठीक है. पॉजिटिव नंबर भी आपके पास, नेगेटिव नंबर भी है, नेगेटिव नंबर भी है. अब पॉजिटिव नंबर तो सभी को पता है, इट विल बी द ग्रेटेस्ट नंबर. क्लियर. तो यहाँ पर अब क्या आना चाहिए, -36 और -21 में से आपका स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, -36. 48. Then next number will be -21 over 48 and last the greatest number will be 20 upon 48. Now -36 upon 48 is the form of which number, -3 upon 4. -21 over 48 is the form of which number, -7 over 16. And last 20 upon 48 you can write it as 5 over 12 क्योंकि हमने माइनस साइन कैंसिल कर दिए थे, और यू कैन राइट इट एज -5 over -12 ऑल्सो. सो दिस इज योर आंसर. क्लियर. ठीक है. सो आई होप दिस मेथड इज क्लियर. जस्ट टेक द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स. डिनोमिनेटर को आपने उस एलसीएम के इक्वल बनाना है. उसके बाद आपने सिर्फ न्यूमिनेटर्स को कंपेयर करना है क्योंकि आपके डिनोमिनेटर्स तो इक्वल बन गए, ठीक है. फिर उसके बाद उनको कंपेयर करके यू कैन अरेंज देम. नाउ फर्स्ट पार्ट, दिस वॉज द क्वेश्चन नंबर 4. Second part, first part will be your homework. You will try yourself, okay? And I am going to take now question number 5, first part. Now see again, over here this negative sign is to be shifted in the numerator, then it will be a standard form. These two signs will cancel, so our rational numbers are 2 upon 5, -1 upon 2, -8 upon 15 and 3 over 10. Now take the LCM of all the denominators, 5, 2, 15, 10. 2, 5 will be as it is, 1s are 15, 2 5s are 10, then by 3, then by 5. Okay, so product of the factors, LCM of 5, 2, 15 and 10 is equal to 5 3s are 15, 2s are 30. मतलब अब इस LCM 30 का क्या मीनिंग हुआ, डिनोमिनेटर इन ईच रैशनल नंबर शुड बी इक्वल टू 30. सो लेट अस टेक फर्स्ट रैशनल नंबर. इन प्लेस ऑफ 5 हमें क्या चाहिए 30. सो 5 के टेबल में 30 कब आता है 6 आर. सो इट इज़ 2 6 आर 12, 5 6 आर 30. हमारा फर्स्ट हो गया नंबर. क्लियर. नाउ लेट अस टेक सेकेंड नंबर, -1 over 2. 2 की जगह हमें क्या चाहिए 30. सो इट विल बी 15 -15 upon 30, 15 2s are 30, ठीक है. नाउ नेक्स्ट रेशनल नंबर -8 over 15. 15 किससे करेंगे बाय 2. सो -16 over 30 एंड लास्ट इज 3 over 10. 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 30 बन जाए, इट विल बी बाय 3. सो इट इज़ 9 over 30. ओके. सो क्वेश्चन नंबर 5 था आपका, यू हैव टू अरेंज देम इन द डिसेंडिंग ऑर्डर. सो व्हाट इज़ द डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग ऑर्डर होगा पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा एंड में द स्मॉलेस्ट वन, ठीक है. तो पहले सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, देखो अब आपको पता है ये दो पॉजिटिव नंबर्स हैं, ये दो नेगेटिव नंबर्स हैं. तो पॉजिटिव नंबर हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है. तो हमारे पास ये दो नंबर्स हैं. अब इन दोनों को कंपेयर करो. सी डिनोमिनेटर्स आर इक्वल 30 and 30. जस्ट कंपेयर द न्यूमिनेटर्स. 12 और 9 में से बड़ा कौन सा होता है 12. सो दैट मीन्स 12 over 30 इज़ द ग्रेटेस्ट. उसके बाद 9 over 30. अब आपके पास ये दो नेगेटिव नंबर्स हैं. अब इन दोनों नेगेटिव नंबर्स में से देखो कौन सा होगा बड़ा. 15 + 15 और +16 में से कौन सा बड़ा है,
16। लेकिन अगर मैं दोनों के साथ नेगेटिव साइन लगा दूँ तो आपका रिलेशन भी ऑपोजिट बन जाता है, ठीक है। सो -15 और -16 में से कौन सा बड़ा हुआ? -15. सो इट इज़ -15 over 30 एंड लास्ट विल बी -16 over 30. अब यहाँ देखो 12 over 30 is the form of which number? 2/5. 9 over 30 is the form of which number? 3/10. Then -15 over 30. -15 over 30 is the form of -1/2. And -16 over 30 is the form of which number? -8/15. और जो आपको क्वेश्चन में गिवन था that it was 8 over -15, तो you can write over here 8 over -15 also, and over here you can write it as -3 over -10 also, ठीक है. So this is your answer. I hope this method is clear. It is very easy. Just take the LCM, make all the denominators equal to the LCM, then just compare the numerators, ठीक है. जो आपके कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस हैं आप इस मेथड से भी उनको सॉल्व कर सकते हैं. फाइन. सो क्वेश्चन नंबर 5 सेकेंड पार्ट यू विल ट्राई योर सेल्फ. ओके, आपने अपने आप करना है उसको. दैट विल बी योर होमवर्क. क्लियर? सो थैंक यू.